I talk about a male and we talk about a female. ठीक है, मेल में क्या क्रोमोसोम्स होगा? 22 पेयर्स तो होगा ही एलोसोम के, इधर भी 22 पेयर ऑफ एलोसोम होगा. ओनली द फर्क इज यहाँ पे x एंड y, यहाँ पे x एंड x. सो कैन आई राइट इट एज x ओनली? दोनों सेम ही है. ठीक है, अभी हाँ ऑटोसोम्स, 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स, ओनली वन सेक्स क्रोमोसोम ना, यही फर्क है, बाकी सब सेम. ओके, नाउ if I talk about this was somatic cell, इसीलिए मैंने 23 pairs बोला. But let's talk about a sperm cell. I hope you are not confusing yourself. This was a normal cell, इसीलिए 23 pair थे. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? Gametes की बात कर रहे हैं. I should not write male because you know sperm cells are produced by male, egg cell are produced by female. Total number of chromosome in sperm cell? Only no pair में. एक सेल में कितना क्रोमोसोम? 23. समझ आया? ठीक है. Now this will have X and Y. This will have. अभी इसमें क्या हो सकता है? मैंने X लिखा है, यहाँ पे Y लिखा और यहाँ तो X और X ही है. Now अगर this sperm cell containing X chromosome, look at what I'm saying. A sperm cell containing X chromosome fertilizes the egg cell containing X chromosome, तो क्या बन जाएगा? XX that results into a female offspring. And if at all a sperm cell containing Y chromosome fertilizes the egg cell containing X chromosome, this will become as XY and it becomes a male. So do you understand? It is the male that is responsible for the sex of the child and not the female. You see? अब तक जो हम पढ़ते आ रहे थे या सोसाइटी में जो दिखाया जा रहा था, तो it was always a female that was blamed for having a girl child or a boy child, whatever. But it's not dependent on females. It is the male which decides the gender of the child. Okay? And there is no such set rule. The sperms can contain, half of them can contain X, half of them contains Y. So it is just a random probability of what fertilizes the egg cell. तो ऐसा कोई रूल नहीं है या ऐसा कोई कहीं लिखा नहीं है कि ये कपल को सिर्फ लड़के ही होंगे या इनको सिर्फ लड़की ही होंगी. It is just a matter of the fusion of these particular chromosomes. It can be one boy, one girl. It can be two boys, one girl. Whatever it is. I hope you understood that much. Okay? वो ग्रीन बॉक्स में क्या लिखा वो पढ़ोगे? वो नहीं, वो साइड का ग्रीन बॉक्स. हाँ. Somebody read. Like पढ़ने की क्या लिखा है? The word gene was coined by geneticist William. Okay, छोड़ो जानो, उसका कुछ काम नहीं. ये समझ में आया? Sex determination. I hope this is clear. Next up, तुमको शायद एक word genome दिया होगा उधर ही किधर. तो genome का मतलब होता है the full complement of DNA is called as genome. याद है मैंने तुमको DNA सिखाया था. तो DNA में बोला था specific part एक gene है, दूसरा specific part एक gene है, इसके बाद वाला एक part gene है. But ये genes के बीच में भी कुछ तो ऐसा part होगा that is not coding for a protein but it's there. So those genes plus the non-gene part together is called as a genome. Only this much you have to remember from that. समझ आया? Are you lost or are you here? Okay. Next up, we go on to genes and their alleles. Now remember what I'm saying. कैरेक्टर का ऑल्टरनेटिव फॉर्म को क्या बोल देते हैं? तो जीन के ऑल्टरनेटिव फॉर्म को क्या बोलेंगे? कैन आई से one gene codes for a character, so one particular allele can code for one trait, another allele can code for another trait. Now do you remember there are homologous pair of chromosome? तो ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी सिमिलर क्रोमोसोम है. तो फर्क इज मैटरनल और पैटर्नल है. अब इसका ये पोर्शन जो है वो एक जीन है, तो इसका भी एक पोर्शन जीन हो गया, दोनों सेम लोकेशन पे. नाउ दिस कंटेन्स वन अलील. ये अलील कौन सा है? ब्राउन आईज के लिए. आई कलर का ही हो सकता है, ये दोनों आई कलर के हैं. नाउ दिस कैन बी ब्राउन आई कलर, दिस कैन बी ब्लैक आई कलर. ओके, और दिस कैन बी ब्राउन, दिस कैन बी ब्राउन आल्सो, और दिस इज ब्लैक, दिस इज ब्लैक. मैंने वेरिएशन बता दिया तुमको. ओके, कैन यू अंडरस्टैंड? इट्स ऑन द सेम लोकेशन. तो ये जीन ही है, बट जीन में दोनों डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इसीलिए हम उसको अलील्स ऑफ द जीन बोलते हैं. समझ आया?
तुम शॉप पे जाओगे तो तुम टी शर्ट मांगा तुमने, उसने टी शर्ट दिखाया, द नेक्स्ट मोमेंट यू लाइक द टी शर्ट, यू विल से डिफरेंट कलर, सेम पैटर्न बट डिफरेंट कलर। समझ आया? अलील ये होता है। So या ये हाँ क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम कैसा है? इफ आई रियली हैव टू शो यू, यू अंडरस्टैंड लाइक दिस। ये होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, ठीक है। इतना पार्ट एक जीन है, तो ये जीन तो कैरेक्टर के लिए है, दिस इज फॉर आई कलर ओनली। ऐसे कितने हैं हमारे पास? 46 है, समझ आ रहा है? 23 पेयर हमारे पास, बहुत बॉडी फीचर्स है। वो जो तुमको दिया है दैट्स जस्ट एग्जांपल्स गिवन यू, समझ आया? तो ये जो है ये जीन है, बट बिकॉज दे आर ऑन द सेम लोकेशन ऑन बोथ ऑफ देम, वी कॉल इट एज अलील्स ऑफ द सेम जीन, ठीक है। जीन कोड्स फॉर आई कलर, अलील कोड्स फॉर डिफरेंट ट्रेट्स। समझ आया? नाउ टू एक्सप्लेन यू दिस फर्दर, we might go here and there from the book, but explain, get it from here. Brown और black नहीं लिखना है, चलो मुझे green लिखना है ताकि हम समझें, ठीक है। दो अलील है, कौन से अलील है? एक है ब्राउन आई कलर के लिए, एक है ग्रीन आई कलर के लिए। अल्टीमेटली उस बच्चे का आई कलर हो गया। नाउ टेल मी, बोथ ऑफ देम वर प्रेजेंट, है ना? डोमिनेशन नहीं आना चाहिए। This was dominating this, hence it the outcome was brown. This is called as a dominant gene या recessive allele बोलते हैं ना जो, तो this is dominant allele, this is recessive allele. Okay, the rule says in presence of a dominant allele, the recessive will not be able to express itself. समझ आया? तो ये और में हम सेम है, सेम हमारा इंटेलिजेंस है, सेम बुक है, सेम क्लास है, सेम टीचर है, सब सेम। बट अगर टीचर सवाल पूछती है, हम दोनों बैठे, she keeps on answering and I'm dumb completely. समझ आया? तो हम दोनों है ना, we both are there, still she is expressing herself, तो उसके सामने मैं तो suppressed रह गई। समझ आया? Okay? So this is dominant, this is recessive. अलील समझ आता है, ठीक है। अदर कॉम्बिनेशन कुड बी ब्राउन एंड ब्राउन, ठीक है, तो ब्राउन ही आ जाता। और अगर ग्रीन और दूसरा भी ग्रीन है, तो ग्रीन बीइंग रिसेसिव इन नेचर, स्टिल इट विल बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। समझ आया? ओके, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं डोमिनेटिंग वाला, तो ग्रीन ही आ जाएगा। दैट्स अ रेयर केस, ऐसा रेयर केस होगा कि वो रिसेसिव ही हो, तो वो एकदम से दिख दो, ठीक है। ऑल्सो let us take some of the sums now, तो तुमको थोड़ा सा समझे कि हम क्या कर रहे हैं, okay? And we take about the condition of heterozygous and homozygous dominant, okay? होमोजाइगस में दोनों डोमिनेंट होते हैं, हेटेरोजाइगस में एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, और हेटेरोजाइगस रिसेसिव में दोनों रिसेसिव। उसका भी आई कलर मात्र है क्या? Okay. Now I am talking about, see, the ones who have not understood, we are taking two of the traits of eye color. The character is what here? Eye color. Eye color. And what are the traits? Brown and green. Brown and green. Now the rule says you cannot take different letters. तो तुमको लेटर कौन सा लेना पड़ता है? जो डोमिनेंट है उसका हम कैपिटल लेटर ले लेते हैं। तो to express this in letters, हम इसको letters में express करेंगे। I will take this as capital B. तो इसका मैं G नहीं ले सकती, इसी का हमको स्मॉल लेना पड़ेगा, that is this. Though it is written as B, we understand that it is for B. समझ आया? Now the condition can be maternal और paternal homologous वाला मैंने बोला, okay? If it is capital B, the eye color or the phenotype would be brown. Phenotype का मतलब होता है बाहरी appearance. External appearance is phenotype. Genetics, तुम्हारा जो अंदर का genetic composition है, that is your genotype. Can I look at you and tell your genotype? Can I look at you and tell your phenotype? Yes. समझ आया? तुमको देख के मैं genetics तुम्हारा नहीं बता पाऊंगी, पर तुमको देख के phenotype तो बता पाऊंगी ना? Eyebrow shape बता पाती हूँ, dimple है या नहीं बता पाती हूँ, तो phenotype बता पाएगी. This is genetically capital B, मतलब उसके दोनों dominant alleles हैं. That's the reason that particular child is having what? Brown eye color. Now there can be one combination like this, one dominant allele, one recessive allele. Still the phenotype would be brown.
and there could be one combination wherein there are two of them which are recessive alleles. In such case, it will be. Now, do you understand? This is a dominant character, and this is a dominant trait, and ये है तुम्हारा recessive trait. Now, because this both of them are same, we call them as homozygous dominant. याद रहेगा? Which is this condition? Homozygous. Which is this condition? Homo और hetero? हमसे मिलता है hetero. Condition कैसी है? दोनों सेम है तो homo. Okay? So homozygous खाली इतना लिख रही हूँ मैं. And this is which condition? Hetero. Hetero का मतलब होता है अलग-अलग, different. Now ये और ये homozygous हो गया, confusion हो जाएगा यहाँ पे. तो मैं क्या लिखूँगी? Homozygous dominant. Because that's a dominant trait. And here I will write. Easy? Is this understandable? Yes. पक्का? तो genetically कोई कैसा भी हो सकता है पता नहीं. अभी तुम्हारे लिए है ये, समझो. I am brown eye color. She is also brown eye color. ठीक है? But मेरा जीनोटाइप ये है. इसका जीनोटाइप ये है. ये तुमको देख के पता चल जाएगा. समझ आया? So this is your both of them are homozygous condition. This is heterozygous. ये तब पता चलता है जब हम कुछ ना कुछ ये genetic karyotype कर लो, है ना, या फिर other some of the other devices that you take, तब पता चलेगा. But looking at you, I cannot tell your genotype. ये genetic counseling में और तुमको pedigree chart analysis से पता चलेगी. Pedigree हम लोग आएंगे उसमें. But I hope this is easy. हाँ, pedigree आएगा. समझा? ठीक है? 20 मार्क का प्रोजेक्ट तुमको. Okay. Fine. So I think homozygous, heterozygous हमने कर दिया, alleles कर दिया, recessive और dominant कर दिया. Every trait will have one dominant and one recessive. Do you understand this? ठीक है? और इसी को हम trace कर सकते हैं pedigree analysis chart में. Go on to the next page and tell me. अच्छा, there is a little blue box given to you at the end of the page. Mark that important because when you are revising, I want you to read it thoroughly. It talks about genotype and phenotype. Can somebody Dhruv read what is phenotype written over there? That blue box. Phenotype, the observer characteristics which are genetically controlled. Is it? तुम्हारे characters है, of course, but they are controlled by your genes. Your genes are responsible for the characters. Now read genotype. The set of genes present in the cell of an organism. Easy? The set of genes that are present in you are nothing but your genotype. और तुम्हारा genotype मेरे से अलग होगा. मेरा इससे अलग है, इसका इससे अलग है. समझ आया? Siblings में similarity होगा. Similarity. It's not copies. Only identical twins will have a little of copies. Okay? All right. We go on to the next page and we do a pedigree analysis. अभी मैंने दे दिया बात है तो उसको आज ले लीजिए. Okay. Pedigree analysis में क्या देख रहे हैं? देखा है पेडिग्री एनालिसिस या चालू किया है काम तुमने प्रोजेक्ट के ऊपर? नहीं, पता. Okay. Pedigree analysis is basically like a family tree. I'm sure you might have seen a family tree. या सुना होगा family tree, and you can also make a family tree. Now of course don't start writing names and everything. ठीक है? Family tree थोड़ा informal होता है इसलिए हम सब नाम लिखते हैं अपने forefathers का, फिर हम तक आता है. This is something like similar to that, but for this you have to use symbols. ठीक है? तो अगर तुम एक ग्रैंडफादर का जो टाइम था ना उससे अगर अभी तक बनाओ तुम्हारे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, तो उसका नाम नहीं लिखते तुम क्या लिखोगे? सर्कल्स एंड स्क्वायर. For females you use circle and to represent male you will have a square. समझ आया? Easy? Okay? And उसमें कंफ्यूज मत हो जाना. तुमको तो छोटा सा पेडिग्री एनालिसिस का चार्ट दिया है. ठीक है? If I make this, let's see if you can understand this. ये समझा? इसको इरेज करूं? हाँ. ठीक है? अब ये एक दादाजी है और ये एक दादी जी है. ठीक है? ये तो समझा? नेक्स्ट अब ये दादा दादी के कितने बच्चे हो गए? 3. कितना क्या पता चला तुमको इससे? 2 male 1 female. This is first generation, this is second generation. स्क्वायर मेल होता है ना? ठीक है? तो कितना बेटे हैं इसके? 2. And how many daughter? 1. ये समझ आया? इसी
आई एम एक्सटेंडिंग द फैमिली टू द थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन देखो पहले और समझो और फिर करना कुछ, ठीक है? पागलों की तरह मत बोला कि ये भी बेटे बेटी है। शादी हो हाँ, शादी। गई। शाबाश, समझ आया? ठीक है, तो बोलेंगे 6 बेटे हो गए अभी, ऐसा मत करना। ओके, नाउ दिस is extending up when I write it like this. Okay? अब ये मैंने कर दिया है। इससे तुमको एटलीस्ट ये तो पता चल गया that how many females, how many males in which generation. No, समझ आया? ठीक है? अभी if at all I am tracing for one particular trait, मुझे देखना है कि जैसे वो attach your लोग है ना, जैसे हम तुम्हारी बात करें नहीं तुम्हारी नहीं, इसका अटैच ईयर लो, तो तुमको कहाँ से आया तुमको देखना है। तो ये तुमको कहाँ से पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम शेडिंग दिस आउट, दैट मींस आई एम ट्रेसिंग दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन, ये जो लड़का है उसको है। अब इसके बाद वो कहाँ से आया? इससे आया। और इसको कहाँ से आया? अरे मम्मी से। व्हाट आई मेंट टू टेल यू इज कि अगर तुम ये देखोगे तो ही तुमको पता चला ना कि कहाँ से आया है ना, समझ आया? लेकिन उसका एक जो कैरेक्टर है वो कैरियर होती से वुमेन होती है, तो जरूरी है वो वुमेन के अंदर ही हो। नहीं, ये इसमें मैंने तुमको कैरियर नहीं बताया, इसको दैट इज एक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, वो अलग है। ये मैं तुमको एक सिर्फ पेडिग्री एनालिसिस बता रही हूँ कि तुम कैसे पेडिग्री चार्ट को पढ़ते हो, समझ आया? ओके, तो ये पेडिग्री, इसीलिए जब तुम ऐसा कुछ सवाल पूछते हो ना कि ये मेरे दादाजी को था, फिर मेरे पापा वाली जनरेशन में नहीं है, फिर मुझे आ गया, बट दैट जीन वाज देयर इन योर फैमिली और नो? आई टेल यू अबाउट वन मोर एग्जांपल और वन मोर एप्लीकेशन। वो कैरियर हो गया या वो रिसेसिव था, इसीलिए वो नहीं दिखा। अब जब इसकी और इसकी शादी हुई फॉर एग्जांपल, ठीक है, या अगर ये आगे जनरेशन बढ़ता है और द अदर वन आल्सो हैज इट, तो उसके बच्चे को तो होगा ही वो, समझ आया? Sometimes a doctor might ask you, if at all, you might have heard a doctor asking कि अगर कुछ ऐसा हम पूछने जाते हैं या कुछ, तो जैसे पूछते कि कोई फैमिली में हिस्ट्री है ये डिजीज का, कैंसर का। Now we know that cancer is very potent, सेल का प्रॉब्लम है वो, ठीक है, बट अगर वो फैमिली में किसी को हुआ है, then there is a greater risk कि वो आगे की जनरेशन में कभी दिख जाए, समझ आया? डायबिटीज के लिए भी पूछते हैं, डू यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, है ना? तो अगर if my father has diabetes, I am vulnerable to diabetes, but it's a lifestyle disease also, है ना? तो ऐसा भी होगा कि मेरे मॉम को भी है डायबिटीज, मेरे डैड को भी है, तो मुझे आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी तो हाई है, बट if I maintain myself properly with all the diet and exercise and everything, there are chances that I might never get diabetes. और कोई ऐसे कपल है जिनको डायबिटीज नहीं है पर उनके बच्चे को है, तो वो लाइफस्टाइल रिलेटेड भी है ना, तो वी कैन नॉट ब्लेम होल ऑफ जेनेटिक्स, बट जेनेटिक्स प्लेज एन इम्पोर्टेंट, वो जीन है और तुमने उसको शायद कंट्रोल कर दिया एक्सटर्नल फैक्टर से। सो पेडिग्री एनालिसिस के 3 एग्जांपल्स दिए हैं, एक दिया है पॉलीडेक्टाइली का, दैट इज दिस ऋतिक रोशन वाला, एक एक्स्ट्रा, ठीक है, और दूसरा ईयर लोब का दिया है। तो तीनों देखो और तीनों देख के मुझे बताओ कि आई एबल टू रीड इट करेक्टली और नो। यस, लुक एट दिस वन, यू हैव read it already, give me. So look at this one, can you see this couple? ये सर्कल कौन है? माता जी, ये पिताजी, उसके कितने बच्चे हैं? 4, 5 है, माय बैड, 5 बच्चे हैं, जिसमें से कितनी बेटियां हैं? 1 2 3 and how many बेटे? 1 and 2, ठीक है, जिसमें ये शेड किया है ताकि वो ट्रेट है कि नहीं है वो पता चल जाए, बाकी को नहीं है। फॉर एग्जांपल earlobes given the character of free or attached earlobes given alongside is this in family both the parents have free earlobe, ये free earlobe मतलब not shaded, attached earlobe का मतलब होता है the one that is shaded। ये पढ़ना पड़ेगा तुमको ताकि ये तुम पढ़ पाओ, इंटरप्रेट कर पाओ। look at this one now, एक रिसेसिव वो फर्स्ट ए फैमिली में, ये वाला ना, एक रिसेसिव और एक डोमिनेंट, हाँ, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम हो, अब प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए ऐसा आउटकम आया, है ना? या तो फिर ऐसा नहीं बोल सकते कि चमत्कार हो गया, ऐसा चमत्कार और फैमिली भी में दोनों इसीलिए 3 को नहीं आया,
और इसमें कैन यू सी बोथ ऑफ देम हैव दिस 100% चांस ऑफ द ऑफस्प्रिंग हैविंग इट. समझ आया? ओके. नेक्स्ट टर्म पॉलीरेक्टाइल भी ऐसे दिया हुआ है, जो भी है, द मदर is not having, the father is having, so there are 50% of chance that the offspring will have it. 50% probability ऐसे. 4 है, उसमें से 2 को possibility है. So you will use pedigree analysis chart and karyotype if at all you are doing any genetic counseling, or you are finding probability of one particular appearance of trait into the next generation. समझा कि नहीं समझा? ऋतिक रोशन का क्या बोल? हाँ जी, कौन सा? हाँ, ऋतिक रोशन 6 उंगलियां, 2 thumbs, 2 thumbs. नहीं मालूम तुमको?